Hello and welcome. This is the second part of the chapter Politics of Planned Development. In the first part, we have seen that at the time of independence, there was a consensus in favor of planned development in the country, and that is why the Planning Commission of India was set up in December 1950. So now the country was going on the path of planned development. So in this video, I'm going to discuss the two 5-year plans, the first and the second 5-year plans, and the what they meant, what was planned in that, and a comparison of both of them. So let's begin. The early initiatives, so inspired by the USSR. The planning process in India was inspired by USSR that we have already discussed in the previous video of the chapter. So 5-year plans were made. Okay, now what are these 5-year plans? Sometimes that is also had been asked that what are 5-year plans. So 5-year plans are simply the document that have the details of the income and expenditure for the next 5 years. That has to be remembered. Okay, so it is a document that give the details of income and expenditure for the next 5 years कि कहाँ कहाँ से जो सरकार है उसको इनकम आएगी, पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर की वो पैसा कहाँ कहाँ स्पेंड किया जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान पहले ही 5 साल के लिए प्लान प्रिपेयर कर लिया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, उसी प्लान के अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का जो बजट होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, so the budget of the central government and the state governments are always in two categories, the plan budget and the non-plan budget. This had been asked for 2 marks. ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्लान बजट और नॉन प्लान बजट क्या होता है. पहले देखिए नॉन प्लान बजट. नॉन प्लान बजट इज स्पेंड ऑन रूटीन आइटम्स ऑन एन ईयरली बेसिस फॉर 1 ईयर. ठीक है, अब किसी भी स्टेट में या किसी भी इंटरप्राइज में कैसे भी आपके दो तरह के खर्चे होते हैं. एक खर्चा जो रूटीन होता है और एक खर्चा जो आपका न्यू एक्सपेंडिचर होता है. रूटीन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का जो बिल्डिंग का जो रेंट जा रहा है, जो मशीन का जो रिपेयर कॉस्ट जा रहा है, जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है. ओके, तो हर जगह कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं ये रूटीन कॉस्ट होते हैं. ठीक है, तो ये जो रूटीन आइटम्स पे खर्चा जो हो रहा है इसमें कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू प्लान एनीथिंग फॉर दोस expenditures because already it is decided that from where the money will be taken for those expenditures and where it will be spent. तो ये routine चीजें हैं, so that goes on as usual. So on an yearly basis the budget gives a detail of the non-plan budget. ठीक है, then you come to plan budget. जो plan budget है ये important है अकॉर्डिंग टू दी एम्स ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है नेक्स्ट 5 ईयर में, प्लान्स डिसाइड होते हैं. ठीक है, कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट इस अगले 5 साल में इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले डाउन करेगी या फिर 5 डैम्स बनाएगी, इस तरह की प्लानिंग होती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग अब आपको उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा फिर कहाँ से आएगा. ओके, तो ये प्लान करने की जरूरत है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्लान बजट. फाइन, सो द गवर्नमेंट द बजट has two categories, plan budget and non-plan budget. Non-plan budget that is spent on routine items on a yearly basis, and plan budget that is planned for 5 years, 5-year basis, that is planned by as per the priorities fixed by the government. Okay, तो ये दो कैटेगरीज होती हैं. अब हम आते हैं 5-year प्लान्स पे. सो द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 1951. ओके, तो दिसंबर 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च किया गया था. सेकेंड 5-year प्लान 56 में और थर्ड 5-year प्लान 61 में. ओके, अब ये तीन 5-year प्लान के बाद फोर्थ 5-year प्लान को शुरू करना था, बट by that time the economic condition of the country had become very bad. ठीक है, this is in your syllabus also. next chapter में जो next to next chapter है
उसमें हम लोगों का एक टॉपिक होगा 60s द डिफिकल्ट डिकेड। ओके, तो जो 60s है वो इंडियन पॉलिटिक्स का, इंडियन जो इंडिया का पूरा हिस्ट्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका मोस्ट डिफिकल्ट डिकेड माना जाता है। तो ये 60 का दशक इतना डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस टाइम पर इंडिया ने कई तरीके की मुसीबतों का सामना एक साथ किया। देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, देयर वाज पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो सिक्योरिटी को लेकर हमने उस दशक में दो लड़ाइयाँ लड़ी, पहले चाइना के साथ फिर पाकिस्तान के साथ। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट डिकेड फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। So the condition of the economy had become very bad, very worse. Okay, तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसको 66 में शुरू होना था, ठीक है, थर्ड 5 ईयर 61 में, तो फोर्थ को 66 में शुरू होना था। बट उस समय पॉलिसी मेकर्स को ऐसा लगा कि ये करना अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हमारे पास हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, मतलब इतनी खराब हो गई थी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने यहाँ तक की कॉल दे दी थी कि लोग हफ्ते में एक दिन व्रत रखना शुरू कर दें। हमारे पास खाने की इतनी कमी हो गई थी, फूड शॉर्टेज इतनी भयंकर हो गई थी। तो इतनी बुरी थी कि उनको लगा कि हम 5 साल के लिए प्लान अभी कर ही नहीं सकते, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हम खजाना खाली है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्लान हॉलिडे लेने की सोची। उसी को कहते हैं प्लान हॉलिडे, कि प्लान से आप हॉलिडे ले लीजिए। जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको थोड़ी समय के लिए रोक दीजिए। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक प्लान हॉलिडे एंड 3 एनुअल प्लान्स वर मेड। ठीक है, अब ये 3 एनुअल प्लान मतलब गवर्नमेंट ने 5 साल के प्लान की जगह एक एक साल के प्लान बनाए। तो 66 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69, ये 3 एनुअल प्लान्स बने थे। और इन 3 एनुअल प्लान के बाद जो फोर्थ प्लान था दैट वाज स्टार्टेड इन 1969। Okay, understood. So plan holiday refers to the period that was taken, the holiday that was taken for from 5 year plans from 1966 to 1969 due to acute economic crisis during that time. This has been asked in the board exams for 2 marks. What do you mean by plan holiday? Okay, so अब आते हैं फर्स्ट 5 ईयर और सेकेंड 5 ईयर प्लान के ऊपर। इसका कंपैरिजन भी आता है और इसका अलग अलग से भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट 5 ईयर प्लान और एक्सप्लेन और समथिंग लाइक दैट। सो कंपैरिजन, in the comparison form I have written, if comparison comes you don't have to do anything, you just have to write about the first 5 year plan and the second 5 year plan in the same manner as I have done here. Okay, so the first 5 year plan was started in 1951. So 1951 is to 1956 is the period of the first FYP. Fine. The chief architect was K.N. Raj. इकोनॉमिक्स थे, बड़े प्रोमिनेंट इकोनॉमिक्स थे of the country at that time. It aimed at bringing country out of the cycle of poverty. इंडिया की जो 3/4 से जो पॉपुलेशन थी उस समय, आधी से भी ज़्यादा population was living below poverty line at that time. Okay, so the main target at that time was to bring these people out of the cycle of poverty. अब cycle of poverty मैं short में बता देती हूँ होता क्या है। साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है कि जैसे आप, जैसे लोग पुअर हैं, ठीक है, अब अगर पुअर है तो उनका जो स्पेंडिंग है वो कम होगा। स्पेंडिंग कम है क्यों, क्योंकि डिमांड कम है। ठीक है, तो जो पुअर है उसके पास इनकम कम है, इनकम कम है इसलिए क्या कम है, डिमांड। ओके, डिमांड कम है इसलिए क्या कम है, प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन है वो हमेशा डिमांड पे डिपेंड करता है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो प्रोडक्शन अगर कम है इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है तो फिर क्या हो गया कि इनकम कम है, इनकम कम है तो फिर आप और फिर वही साइकिल चलने लगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ओके, and it is very difficult to bring the economy out of this cycle of poverty.
So that was the main target that was kept in the first 5-year plan, to bring country out of the cycle of poverty, to increase savings, to increase investment. Fine. So the slogan that was given here in the first plan was hasten slowly. Now this is an ironical term in itself. मतलब जल्दी करिए धीरे धीरे, धीरे धीरे जल्दी करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही गहरी चीज कही गई थी। देखिए हमारी जो कंट्री थी उस टाइम, वो 70% लोग, मैंने आपको बताया अभी कि पॉवर्टी लाइन के बिलो थे, और हमारी वो पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो मेन टारगेट इसीलिए इस प्लान में ये रखा गया था, फर्स्ट प्लान में, दैट वी हैव टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट। अगर आप रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो दैट कैन नॉट हैपन थ्रू द एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज इन एग्रीकल्चर द रिजल्ट्स कम लेट, रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो आपको जाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज की तरफ, फाइन। और जहां आप इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस शिफ्ट करेंगे, वहां आपका फोकस हट जाएगा फ्रॉम द मेजर चंक ऑफ योर पॉपुलेशन। 70% पॉपुलेशन से आपका फोकस हट जाएगा, तो जो मेजर जो आपकी पॉपुलेशन है वो पुअर की पुअर रह जाएगी, और जब वो पुअर रह जाएगी तो आपकी डेमोक्रेसी को भी खतरा है उससे। India was a new democracy. So if you have to show it to the people that democracy will bring them prosperity, then you have to work for these people. If the politics fails to work for these people, then they will find alternate ways to get their demands fulfilled. And there lies the danger to democracy. ठीक है। तो चैप्टर में एक जगह ये है कि ये जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको ये लगा कि अगर हम जल्दीबाजी करेंगे डेवलपमेंट के लिए, तो दैट विल endanger democracy in the country. How it will endanger democracy in the country? Because then the focus will shift from the poor people to the industry sector, and that will widen the gap between rich and poor, and then there will arise a danger to democracy in the country. Okay, तो इसलिए जो फर्स्ट प्लान था उसमें जो मेन स्ट्रेस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, कि पहले हम उनकी तरफ ध्यान दें जो देश में सबसे ज्यादा हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर पे हमारी इकोनॉमी पूरा सिस्टम डिपेंड करता था, इसलिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवांस करेंगे। उसके लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर अंडरटेकन इन द फर्स्ट 5-year प्लान। मेगा डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड लाइक द भाखड़ा नांगल डैम, major irrigation projects were undertaken, huge investment were made in large scale project। okay, और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए the other important thing was land reforms। अब लैंड रिफॉर्म्स जो है ये पूरा मैंने सेपरेटली टॉपिक इसको इलेबोरेट करके बनाया हुआ है, क्योंकि आपका ये एक सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। ओके, तो उसकी डिटेल मैं यहाँ नहीं दूंगी, डिटेल आपको इसी चैप्टर के वीडियोस में मिलेगा, आगे जो थर्ड एंड फोर्थ वीडियोस परहैप्स उसमें मिल जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ ये था कि आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कि लैंड की प्रोडक्टिविटी ना इंक्रीज करें। Okay, so you have to increase the productivity of the land in order to increase agricultural production, which can happen only by introducing some land reforms. Okay, so reforms that can increase the productivity of land. Okay, so that was considered, और इसके अंदर बहुत सारे काम किए गए थे जिनको मैं आपको बताऊंगी। अब फर्स्ट 5-year प्लान को ही पहले कंटिन्यू करते हैं। This plan aimed at raising the level of national income by raising people's saving and investment। कि नेशनल इनकम रेस कैसे होगी जब तक आप लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। देखिए, जो जैसे जितना भी पैसा आप बचाते हैं वो कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के काम में जाता है। तो जब कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होगी तब नेशनल इनकम जो है वो बढ़ेगी। कैसे? सिंपल एग्जांपल्स इसको समझिए। मान लीजिए कि आपकी इनकम है 10 रुपए है, ठीक है। 10 रुपए में से आपका खर्चा है 8 रुपए, आपने खर्चा कर दिया 8 रुपए, 2 रुपए बचे। अब वो 2 रुपए जो बचे हैं वो या तो आप एज सेविंग रखेंगे, सेविंग रखेंगे तो बैंक में रखेंगे, मतलब अब 10 रुपए में 2 रुपए कोई बैंक में नहीं रहता, इसको इलेबोरेट करिए जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा, है ना।
तो सेविंग आप या तो बैंक में रखेंगे, बैंक उसका क्या करता है, बैंक उसको इन फॉर्म ऑफ लोन देता है। ओके, तो किसी को अगर कोई लैंड खरीदने के लिए या फैक्ट्री खरीदने के लिए या इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो बैंक उसको लोन के फॉर्म में देता है। तो वो क्या हुआ, ये वो एक फर्दर इन्वेस्टमेंट हो गया इकोनॉमी में। या तो आप उसको खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, आप 2 रुपए से जाके कोई और मशीन खरीद लाएंगे जिससे कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाए, या तो फिर आप उससे अपनी कोई स्किल डेवलप करेंगे, कोई कोर्स करेंगे, कुछ करेंगे। ओके, तो ये जो है इससे क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। ओके, तो पर्पस यही था कि किसी तरह हम लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ाएं, तो उससे नेशनल इनकम जनरेट होगी। फाइन, बट दिस कुड नॉट बी डन कंसिडरेबली। व्हाई इट कुड नॉट बी डन कंसिडरेबली, मतलब बढ़ा, सेविंग भी बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, लेकिन उतना नहीं हुआ एज इट वाज कंसीव्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स। Why it could not be done? Because the total spending already was very low. So already अगर आपकी total spending बहुत low है, उस समय गरीबी इतनी थी कि people were hand to mouth. Hand to mouth means कि they were just surviving. Okay, so there was no scope for reducing the total in spending further. सेविंग तब बढ़ती है जब आपकी स्पेंडिंग कम करें आप। तो 10 रुपया ही अगर आपकी इनकम है और उसमें से 8 रुपए खर्चा हो रहा है, तो 2 रुपए बच रहा है। अगर आप इसको 2 रुपए को ज्यादा सेविंग अपनी ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा। ओके, तो आपको खर्चा 6 रुपए करना पड़ेगा, लेकिन 6 रुपए खर्चा आप करेंगे कैसे, क्योंकि ऑलरेडी जो आप 8 रुपए खर्चा कर रहे हैं उसको आप उस वो आपका सर्वाइवल लेवल है, उससे कम आप उसको नहीं ले जा सकते। तो ये कंडीशन थी। Okay, so it's total already the total spending was very less. That is why it could not be increased any further. Therefore, the achievement मतलब जितना टारगेट रखा गया था उतना अचीव नहीं हो पाया था, और जो सेविंग्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाई थी। इसीलिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, 56 to 61 इज द प्लान पीरियड। चीफ आर्किटेक्ट थे इसके पीसी मेलानिबस, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। इंडियन इकोनॉमी में इसका रेफरेंस आप इनका रेफरेंस आप देखेंगे पीसी मेलानिबस का। मेलानिबस थ्योरी होती है पूरी, जिसको पढ़ी जाती है। ओके, तो ये उसके चीफ आर्किटेक्ट थे सेकंड 5 ईयर प्लान के। और इन्होंने कहा कि ये तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक आप जो है सेविंग्स और इनकम और इन्वेस्टमेंट, इसमें ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यू कैन नॉट ब्रिंग द पीपल आउट ऑफ इट अनलेस एंड अंटिल यू स्टार्ट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करना है और उसके लिए हैवी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी। तो ही गेव द स्लोगन ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, चाहे आप कुछ भी कर लें, इसके बिना इकोनॉमी आपकी डेवलप नहीं कर सकती है। सो बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कोर सेक्टर। कोर सेक्टर हमेशा होता है इलेक्ट्रिसिटी, पावर, स्टील, आयरन स्टील, रेलवेज, कम्युनिकेशन। ओके, so a lot of industries were developed in the core sector under the public sector. Public sector industries थी, कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाउन किया गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो उसको मार्केट किया जा सके, वो हर जगह अच्छे से बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज पे आपने स्पेंड कर दिया, मगर उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट हो गया। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट हो गया? एग्रीकल्चर अपना काम करता रहता है, इंडस्ट्री अपना काम कर रही है, तो एग्रीकल्चर भी अपना काम करता, पर ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो बजट था वो शिफ्ट कर दिया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर तब डेवलप करती है जबकि गवर्नमेंट सब्सिडीज देना शुरू करती है। गवर्नमेंट ने लोगों को जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनको अच्छे सीड्स दिए, अच्छे फर्टिलाइजर्स दिए, पेस्टिसाइड्स दिए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, उनके क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया। ओके, तो इससे जो एग्रीकल्चर होता है, प्रोडक्शन होता है, वो बूस्ट करता है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास खुद के इतने रिसोर्स नहीं होते हैं कि वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें एग्रीकल्चर में। ओके, तो गवर्नमेंट ने वहां से पैसा खींच के किसको दिया, इंडस्ट्रीज को दिया, जिससे कि इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके। दैट इज व्हाई द प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट डाउन। अब एग्रीकल्चर सेक्टर उतना फ्लरिश नहीं कर पाया था, एंड दैट्स व्हाई द इन ड्यूरिंग 60s तक जो आते आते हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
नीचे चला गया, बहुत डेवलप नहीं हो पाया, एंड द रिजल्ट वाज फूड शॉर्टेजेस इन द कंट्री। तो पहला तो जो आउटकम था सेकंड 5 ईयर प्लान का वो ये था कि फूड शॉर्टेज की जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत बढ़ गई। दूसरी चीज कि जो हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज था दैट वाज बीइंग स्पेंट ऑन माई टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, जो कि उस समय बहुत महंगी थी। ओके, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए, और फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड करना पड़ता है। तो उस समय हम लोगों को बहुत मदद भी मिली, यूएसएसआर ने मदद की थी भिलाई स्टील प्लांट में सेटअप करने में। तो इस वजह से जो है हमारा वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग दैट टाइम। So in the third 5 year plan was also more or less same as the second 5 year plan, and that's why I told you in the beginning itself that during 60s, जैसे 60s का later half आता है, the economic crisis became very acute, and the food crisis became more acute. ओके, तो हमारे पास खाने को नहीं था उस समय, कंट्री के अंदर इतना भी अनाज नहीं था कि पूरी पॉपुलेशन का पेट भरा जा सके सफिशिएंटली। फाइन। और जो जिन कंट्री से हम अनाज के मांगते थे कि इंपोर्ट करने के लिए मांगते थे, तो फिर अपने टर्म्स और कंडीशंस लगाते थे। ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। सो दिस इज द कंपैरिजन of the first and the second 5 year plan. Let's quickly see this graph also. This is from your book only. Allocations in the first and the second 5 year plan, that how money allocation was done in budget. Okay, so first 5 year plan का जो है रेड ब्लॉक है, और ब्लू ब्लॉक जो है वो सेकंड 5 year plan का है। अब अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में फर्स्ट 5 year प्लान में 15.1% ऑफ द टोटल बजट, सेकंड में 11.8%। ठीक है, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल ये सब देखिए, एग्रीकल्चर ये सब एग्रीकल्चर का आया ना, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में फर्स्ट 5 ईयर में जो एक्सपेंडिचर है वो सेकंड 5 ईयर प्लान से ज्यादा है। तो फर्स्ट 5 ईयर का जो इम्फोसिस हुआ किस पे हुआ, एग्रीकल्चर पे हुआ। ठीक है, सेकंड 5 ईयर का जो अब इंडस्ट्रीज का देख लेते हैं, इंडस्ट्री एंड माइनिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान में केवल 7.6%, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको दुगने से भी ज्यादा कर दिया गया, 18.5%। तो हियर द एम्फोसिस इज ऑन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पे एम्फोसिस है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेकेंड 5 ईयर प्लान इट इज मोर देन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट में 23.6, सेकेंड में 28.9। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो एम्फोसिस जा रहा है वो जा रहा है इंडस्ट्री पे, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो एम्फोसिस जा रहा है वो जा रहा है एग्रीकल्चर पे। Okay, so this is the thing to be kept in mind. A comparison is more or less asked in your board exams of the first and the second 5 year plan. It has asked for 4 marks as well as for 6 marks also. Okay, so prepare this for your board exams. In the third video of the chapter, I am going to tell you about the key controversies in the planning. That is also important topic of the chapter. ठीक है, so watch the third video as well. Uh, that's all for this video. Prepare your notes thoroughly and keep studying, keep learning. Thank you for watching. Bye bye.